Hello students and the teachers. I am Chavi, English mistress at Government Middle School Ballankala, Block Morinda, District Rupnagar. Today I am here again to share the structure and model question paper that is of 10th class. Today we will talk about the structure and model question paper of 10th class. Students, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਾਈਟ ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ उस अकॉर्डिंग कर पाओगे सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली मिशन 100% सेशन 2023 and 24 structure of question paper English class 10th first of all we'll talk about internal assessment that is INA internal assessment ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ 20 ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ talk about each and every subject we'll talk about our subject that is English so in English this is of 20 marks internal assessment ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 marks ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ 3 marks ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 marks ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ 9th ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ 1 mark ਫॉर दैट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 mark ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ 15 marks ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ 15 marks ਲਿਸਨਿੰਗ 8 marks ਸਪੀਕਿੰਗ 7 marks ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੈਸ that is of 8 marks listening ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ that is of 8 marks ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਪੀਕਿੰਗ that is of 7 marks ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 marks ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੋਟਲ 15 ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ INA ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ 20 marks ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਲਈ ਸੋ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਓ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਸੰਭਾਲਤੀਆਂ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ perform very well in that prepare for that first 3 marks ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
रोज़ चलदियां ही रहिंदियां तो उहदे लई 1 नंबर है। टोटल 20 मार्क्स। क्लीयर? यस, तुहाडा 100 मार्क्स का पेपर है जिहदे विचों 20 मार्क्स तो ये हो गए, हुण रह गए 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, उहदी स्ट्रक्चर बहुत ध्यान नाल समझनी है तुसीं। गो थ्रू इट नाउ। थ्योरी 80 मार्क्स, INA 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। यू कैन सी इट ऑन योर राइट। टाइम कितना मिलेगा पेपर नू सॉल्व करन लई? 3 आवर्स, 3 घंटे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। सैक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सब तो पहला तुहानू कॉम्प्रीहेंशन आंदी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उहदे लई फस्ट क्वेश्चन दे 2 पार्ट्स हुंदे आ, A एंड B। ए पार्ट है जिहड़ा अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अनसीन क्यों है ये तुहानू पता है, 10th क्लास विच हो गए हो तुसी हुण, तो क्लीयर है कि तुहाडी बुक विचों पैरा नहीं आएगा, पैसेज या जो भी तुहाडी कॉम्प्रीहेंशन लई यूज़ होया तुहाडी बुक विचों नहीं आएगा। दैट वुड बी आउट ऑफ द बुक, राइट। इस करके उन्होंने अनसीन कहते कि तुसी पहला वो पढ़िया नहीं हैगा। तो होएगा 5 नंबर का पैसेज आएगा, नीचे 5 MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस, तो उन्होंने तुसी आंसर्स देने आ, ये 5 मार्क्स की। तो बी पार्ट है जिहड़ा अनसीन पोस्टर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन। एक पोस्टर आएगा, ये भी तुहाडी बुक विचों नहीं होएगा, अनसीन है भी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 5 MCQs होणगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस, तुसी ਉਹਨੂੰ आंसर देने ਉਹਨਾਂ ਦੇ पोस्टर देख के। इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 A एंड B पार्ट, अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर दी, ते अनसीन पोस्टर 5 नंबर का, टोटल 10 मार्क्स। क्लीयर? वेरी गुड। और सैक्शन ए है जिहड़ा बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि तुसी पैसेज पढ़ के समझ के 5 MCQs ਦੇ आंसर देने ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ। 10 ਮਾਰਕਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਨ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ B, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ਇਹਦੇ 'ਚ MCQs होंगे। It will consist of 8 objective type questions carrying 1 mark each। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 क्वेश्चन होंगे, कोई चॉइस नहीं होएगी, 8 ਦੇ 8 ਤੁਸੀਂ सॉल्व करने ही है, ਤੇ हरेक क्वेश्चन ਲਈ 1 मार्क है। Objective type questions may include questions with 1 word to 1 sentence answer। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 1 word 'ਚ ਵੀ आंसर देना पै सकदा, 1 सेंटेंस च भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उहदे विच, ट्रू और फॉल्स होंगे, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस MCQs होंगे। तो इहदे च मिक्स होएगा क्वेश्चंस का, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, 1 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस आंसर, मिक्सचर होएगा सारे क्वेश्चंस का। 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर दे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। इंग्लिश मेन कोर्स बुक, तुहाडियां 2 बुक्स है, मेन कोर्स, सप्लीमेंट्री। वैसे तो 3 है, ग्रामर, पर लिटरेचर पार्ट की जो गल करिए तो मेन कोर्स बुक है तो सप्लीमेंट्री है। मेन कोर्स बुक विचों 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो सप्लीमेंट्री रीडर विचों 4 क्वेश्चंस आएंगे। दोनों बुक्स विचों 4-4 क्वेश्चंस कवर कर। क्लियर? इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, 8 मार्क, इट्स अ बिग थिंग, राइट। नाउ सैक्शन C, इंग्लिश टैक्सट बुक्स। ਇਹਦੇ 'ਚ ग्रामर इंक्लूडिड नहीं है, सैक्शन B च भी ग्रामर इंक्लूडिड नहीं है, वो अलग है। सैक्शन B एंड सैक्शन C ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ लिटरेचर बुक्स चो है, मेन कोर्स ते सप्लीमेंट्री रीडर विच। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मेन कोर्स बुक। ये सिर्फ मेन कोर्स बुक विचों आएगा, प्रोज पार्ट है जिहड़ा, उहदे विचों पोइट्री नहीं, सिर्फ प्रोज।
राइट। ए जिहड़ा पार्ट होएगा वो होएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 आउट ऑफ 5। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन्हां चों तुसीं 3 दे आंसर देने। एक क्वेश्चन एक आंसर लिए तुहानूं 2 नंबर मिलणगे, टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो जिहड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है मेन कोर्स बुक विचों 6 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चंस तुसीं करने 5 विचों। तो इहदा बी पार्ट होएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2। देयर वुड बी 2 क्वेश्चंस, 2 विचों तुसीं एक करने। क्लीयर। तो एक आंसर है जिहड़ा किन्ने नंबर का है 3 मार्क्स। सो इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स। मेन कोर्स बुक का प्रोज पार्ट है जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है जिहड़ा 9 मार्क्स का है, जिहदे विचों ए पार्ट विच शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे 5, उहदे चों तुसीं 3 सॉल्व करने 6 नंबर दे हो गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। बी पार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 विचों एक करना है तो वह होएगा 3 नंबर का। 9 मार्क्स टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश मेन कोर्स बुक सेम बुक पर पोइट्री पार्ट। इट इज़ फॉर पोइट्री सैक्शन। पोइम्स है तुहाडी बुक विच, उन्हां विचों क्वेश्चनस होणगे। ए पार्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का, उहदे स्टैंजा पोइम का स्टैंजा आएगा तुहाडी पोइम्स विचों जिहड़ियां तुहाडी बुक विच हैगियां वा। 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चनस, 3 क्वेश्चनस आएंगे स्टैंजा नाल रिलेटेड, उहदे चों तुसीं 2 क्वेश्चनस करने और एक क्वेश्चन या एक आंसर इट इज़ ऑफ 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर का है, तो टोटल 3 मार्क्स। बी पार्ट सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया आंदा है पोएम का या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनस आएंगे, उहदे विचों एक करना है एंड इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। पोइट्री सैक्शन तुहाडा टोटल 6 मार्क्स का है। ये भी ईजी है क्योंकि तुसी हर पोइम का सेंट्रल आइडिया याद करो। जो तुहानूं हर पोइम का सेंट्रल आइडिया आंदा है, सेंट्रल आइडिया आएगा ही किसी ना किसी पोइम का, तो 3 मार्क्स क्लीयर है। तो जिहड़ा ए सैक्शन है स्टैंजा 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चनस, उहदे विच एक क्वेश्चन तो पक्का हुंदा नेम द पोइम एंड द पोइट, कि पोइम ते पोइट का नेम दसना जिहदे विचों ये स्टैंजा लिया गया है। 1.5 नंबर, इट इज़ फिक्सड, यू कैन से कि तुहानूं बहुत ईजीली है ये मार्क्स लेने। क्लीयर, वेरी गुड। नैक्सट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर, जिहड़ी तुहाडी दूसरी बुक है उहदे विचों है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चनस आएंगे, उहदे चों तुसीं 3 करने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यह जिहड़ा आ 3 मार्क्स का एक आंसर है। तुसी देख लो उपर जिहड़े तुसी कि पढ़िया वा मेन कोर्स बुक च लॉन्ग आंसर है, जिहड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 3 नंबर का इक्को ही, ये तुसी 3 करने आ, तीनों ही 3-3 नंबर के 9 मार्क्स से। क्लीयर, वेरी गुड। तो ये हो गया तुहाडा टैक्सट बुक पार्ट सैक्शन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैक्शन डी, दैट इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी पार्ट तुहाडी बुक विच हुंदा ग्रामर दी, ईडियम्स, फ्रेजेस, होर की हुंदा है, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड फॉर मैनी, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन जिन्हों तुसी कह दिंदे हो, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, दैट इज़ वोकैबलरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट पार्ट ओनली। इहदे विच पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन एंड करेक्ट द सेंटेंस, इन्हां विचों क्वेश्चनस आएंगे। ये हैगा 4 नंबर का। इन्हां टॉपिक्स विचों कि कोई 4 टॉपिक्स ते तुहानूं क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का। 4 क्वेश्चन एक नंबर का होएगा, 4 मार्क्स, कोई ऑप्शन नहीं होएगी ये विच भी। ठीक है, तुसी 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, चारों ही करने और सारे टॉपिक्स नहीं कवर होंदे। ये कोई 4 टॉपिक पेपर सैटर ले लेंगे, उन्हां ते तुहानूं क्वेश्चन सैट कर देंगे। दिस इज़ योर वोकैबलरी पार्ट। नेक्स्ट कम्स सेक्शन ई, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये भी तुहाडी
थर्ड बुक जिहड़ी ग्रामर बुक राइट उहदे विचों है। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। ए पार्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, जिहड़ी तुहाडी वर्नैकुलर लैंगुएज है तुसीं उहदे च आंसर देना, इंग्लिश तो पंजाबी या हिंदी विच ट्रांसलेट करना है। इट इज़ 3 आउट ऑफ 5, 5 सेंटेंस आएंगे, 5 सेंटेंसिस विचों तुसीं 3 दे आंसर देने, ट्रांसलेशन करनी है। 3 मार्क्स, एक सेंटेंस 1 नंबर का है। बी पार्ट सेम, बस वाइस वर्सा हो गया, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश। पंजाबी या हिंदी विच सेंटेंसिस आए होंगे उन्होंने तुसी इंग्लिश विच ट्रांसलेट करना है। सेम 3 आउट ऑफ 5, 5 आएंगे, 5 चों 3 दे तुसी आंसर्स देने आ। 1 मार्क फॉर ईच, 3 मार्क्स। इट इज़ वेरी स्कोरिंग। ट्रांसलेशन 6 मार्क्स दी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रामर डू एज डायरैक्टेड। ग्रामर पोर्शन आएगा ये उहदे च लिखिया होएगा, तुसी एक क्वेश्चन दे नाल लिखिया होएगा कि की करना उहदे विच। ग्रामर दे टॉपिक पंक्चुएशन, वॉइस, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच जिन्हों तुसी कह दिंदे हो राइट। होर भी बहुत सारे टॉपिक्स है तुहाडी बुक विच, सारे ही कवर होणगे ते आएगी 10 मार्क्स दी। मतलब कोई 10 टॉपिक्स चों तुहानूं 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, हर क्वेश्चन लिए 1 नंबर है तो टोटल हो गया 10 मार्क्स। ग्रामर डू एज डायरैक्टेड, डू एज डायरैक्टेड इस करके लिखिया कि क्वेश्चन दे नाल लिखी हुंदी डायरैक्शन कि तुसी उस क्वेश्चन च करना की है। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 9 ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾर्ट है ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ए पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ और एडवरटाइजमेंट और नोट मेकिंग और नोटिस राइटिंग टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द गिवन 2, इन्हां चारां विचों कोई 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैसेज और नोट मेकिंग आ सकता है, मैसेज या नोटिस आ सकता, या एडवरटाइजमेंट या नोटिस आ सकता। चारां विचों कोई 2 टॉपिक्स कवर किए होणगे ते उन्हां दोनां विचों तुसीं एक करना है। हुण जे सपोज करो मैसेज या नोटिस दोनों आए हुए, मैसेज एंड नोटिस दोनों आए, दोनों चो तुसी एक करना है। क्लियर। इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स ए पार्ट। नेक्स्ट इज बी पार्ट पैराग्राफ, 1 आउट ऑफ 2, 2 पैराग्राफ्स आएंगे उन्हां विचों एक करना है। इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट कम्स लेटर राइटिंग सी पार्ट, 1 आउट ऑफ 2, 2 आएंगे उहदे विचों एक करना है। लैटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह का एक आएगा क्वेश्चन, दोनों विचों एक करना तुसी, या तुहाडे सिलेबस ऑफिशियल बिजनेस लैटर भी हैगे ओह, या फिर इनफॉर्मल, मतलब इस तरह आएंगे 2 आएंगे उहदे विचों एक करना। इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। तो टोटल ये हो गया 13 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑफ 13 मार्क्स इन टोटल राइट। एनी 2 फ्रॉम पर्सनल बिजनेस एंड ऑफिशियल, आ देखो तुहाडियां लैटर्स लिखियां वा पर्सनल बिजनेस ते ऑफिशियल, इन्हां विचों तुहानूं 2 लैटर्स आउणगियां, दोनों चों तुसीं एक करनी है। क्लीयर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ नॉट टू बी अटैम्प्टेड, इस तुसीं कुछ लिखना नहीं हुंदा, ये टीचर ते है, टीचर ਲਈ है एक तरह तुसीं कह सकते हो, पर तुहानूं इह 'च ध्यान की रखना पैंदा गुड हैंड राइटिंग, मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग 5 मार्क्स। तुसीं पेपर विच हैंड राइटिंग किद्दां दी कीती है ਉਹਦੇ मुताबिक तुहानूं 5 नंबर दिते जाणगे। तो ਇਹਦੇ ਲਈ कोई पैरा नहीं आएगा कि तुसीं लिखना है गुड हैंड राइटिंग ਲਈ, नो नथिंग। जस्ट ये है कि तुसीं पेपर साफ सुथरा सोहना करना है कि पढ़िया जाए, बस ये नहीं है कि जस्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग, थोड़ा पेपर दी नीट एंड क्लीन रखना पेपर नूं। क्लीयर। इट इज़ फॉर 5 मार्क्स। ये हुण तुहाडे पेपर जो तुसीं लिखिया कितना साफ सुथरा रखिया उहदे ते डिपेंड करता। सो दिस वॉज योर स्ट्रक्चर। नाउ लैट्स टॉक अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर, जिहड़ा कि तुहानूं रिवीजन लई आ भी गया होएगा तुहाडे कोल। दिस इज़ द मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स।
ਨੋਟ all the questions are compulsory, ਸਾਰੇ questions ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ questions 'ਚ choice ਹੈ, no। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ मैं पैरा रीड नहीं करूँगी, कोई questions रीड नहीं करूँगी, just आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। क्लियर? सो सैक्शन ए रीडिंग स्किल्स, तुसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पिछे देखा सी, सैक्शन ए देखा सी ना, दिस इज फॉर 10 marks, right? Question number 1, A part, read the passage given below and answer the questions that follow। पैरा दिता होया, पैसेज दिता होया वा, तुसी इहनू रीड करके नीचे देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 5, उन्हां दी ऑप्शंस है, उस तुसी आंसर टिक करना है, टिक नहीं करना, लिख के आना पेपर च, होर क्वेश्चन पेपर च टिक कर दिओ, राइट? मतलब तुसी उस चों आंसर फाइंड आउट करके पेपर विच लिखना है। सो ईजी 5 marks, पर ये लिए की है ध्यान रखना, ये नहीं कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के वर्ड लभी जो, नो, दिस इज़ नॉट द वे। पैसेज पढ़ो, समझो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो सारे, उस तो बाद दोबारा पैसेज नू रीड करो तो उन्होंने अंडरस्टैंड करके आंसरस मार्क करके अपने पेपर ते लिखो, राइट? और एक गल का ध्यान रखना बच्चे, बोर्ड के एग्जाम्स है, तुसी क्वेश्चन पेपर ते कोई मार्किंग नहीं करनी। कई बार होंदा ना बच्चे देखते कि पैसेज दे पहला आंसर टिक करके रख लैने फिर लिख लांगे, नो, तुसी तो अपने वालों कोशिश की हुंदी अपनी हैल्प करन दी, पर देखने वाले नूं ये लग सकता कि चीटिंग केस है, कि बच्चे नूं किसी ने आंसरस मार्क करवाए, बच्चे ने फटाफट कर ले। तो अवॉइड राइटिंग इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर ते कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं मार्क करना तुसी, एक्सेप्ट योर रोल नंबर ज़रूर लिखना है। क्लियर? गुड। सो दिस इज़ द ए पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन 1। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, पोस्टर, अनसीन पोस्टर। रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पोस्टर दिता होया, तुसी इहनूं ध्यान नाल देखना है, नीचे 5 MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिते हुए है, उन्हां दे आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। क्लीयर? दिस इज़ ऑफ 10 marks। नाउ सैक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़िया सी तुसी, इच मेन कोर्स ते सप्लीमेंटरी, मेन कोर्स विचों 4 क्वेश्चन है, सप्लीमेंटरी रीडर विचों 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, कोई चॉइस नहीं है। क्लीयर? फर्स्ट देखो MCQ भी है, ब्लैंक भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जिहड़ा हैगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो बाद देखो, द पुअर स्कैमस्टर्स वॉज गिवन डैश बाय द स्वेलो, ठीक है, तो ओह तुसी देखना है। क्लीयर? फिर उस तो बाद 1 word या 1 sentence आंसर है, ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज कवर इन इट। क्लीयर? रेस्ट। सैक्शन सी, इंग्लिश टैक्सट बुक, ये मेन कोर्स बुक का तुहाडी पार्ट है, ठीक है, प्रोज पार्ट, नॉट पोइट्री पार्ट। ये जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दिते, उस तुसी 3 दे आंसर देने, 2 नंबर का एक आंसर है, 6 marks। उस तो बाद बी पार्ट है जिहड़ा, उहदे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है, उन्हां विचों एक दा आंसर देना है, इट इज़ ऑफ 3 marks। ये प्रोज पार्ट है। नाउ पोइट्री सैक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट विच स्टैंजा है, स्टैंजा पढ़ के तुसी 3 क्वेश्चंस विचों एक दा आंसर 2 दा आंसर देना, सॉरी, एंड ईच क्वेश्चन और आंसर इज ऑफ 1.5 mark, 1.5 नंबर का है, 3 नंबर का है। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द इट्स पोइट, दस्या सी ना मैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन, सारियां पोएम्स ते पोइट्स के नेम याद होने चाहिए। नैक्सट बी पार्ट, सेंट्रल आइडिया, थीम या फिर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी। इच देखो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम रजिया द टाइग्रेस, ये सेंट्रल आइडिया ही है, सो इट इज़ ऑफ 3 marks, दोनों विचों एक क्वेश्चन तुसी कवर करना है। क्लीयर? वेरी गुड। नाउ सप्लीमेंटरी रीडर, सेकेंड बुक है जिहड़ी तुहाडी, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रिलेटिड टू दैट, 5 क्वेश्चंस आए हुए उहदे विचों, उहदे चों तुसी 3 करने आ, एक क्वेश्चन या आंसर दे 3 नंबर है, 9 marks। क्लीयर? सैक्शन डी, वोकैबलरी, 4 marks दी है, देखो 4 टॉपिक कवर किए होंगे। सी ईडियम हैगा,
वन वर्ड सबस्टिट्यूशन हैगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैगा, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ये तुहाडे हैगे आ टॉपिक होमोनिम्स होमोफोन्स राइट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है। सो दिस इज़ वॉट इज़ वोकैबलरी 4 मार्क्स, कोई चॉइस नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦੇ 4 ही करने ਆ। क्लीयर। नाउ ग्रामर सेक्शन ई ट्रांसलेशन ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर बुक चो है ये 29 मार्क्स का यह पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑफ ट्रांसलेशन। ए पार्ट विच हैगी आ इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी। 5 सेंटेंस इंग्लिश दिते हुए तुसी उन्हां नूं पंजाबी या हिंदी विच ट्रांसलेट करना, कोई 3 सेंटेंसिस नो 3 मार्क्स है ये लिए। नैक्सट पार्ट है जिहड़ा बी पार्ट है क्वेश्चन 7 का, वो वाइस वर्सा है पंजाबी या हिंदी तो इंग्लिश विच ट्रांसलेट करना है। 5 सेंटेंसिस दिते आ पंजाबी ते हिंदी दोनों लैंग्वेजेस विच, अपनी वर्नैकुलर के अकॉर्डिंग तुसी रीड करके उन्होंने इंग्लिश च ट्रांसलेट करना है। तो ये भी 3 नंबर दी है 3 सेंटेंसिस। क्लीयर, वेरी गुड। नाउ ग्रामर पार्ट डू एज डायरैक्टेड क्वेश्चन नंबर 8। ये 10 क्वेश्चनस है, तुसी डायरैक्शन के अकॉर्डिंग इन्हों कवर करना। फर्स्ट देखो डिटर्मिनर है, सैकेंड प्रैपोजिशन, नैक्सट मॉडल्स, कंजंक्शन, नॉन फाइनेट वर्ब, उस तो बाद सबऑर्डीनेट क्लॉज, क्लॉजेस का टॉपिक है तुहाडा कवर किया होया। उस तो बाद पैसिव वॉइस, वॉइस का, नरेशन, टेंस एंड पंक्चुएशन। 10 क्वेश्चन देखो, 10 दे 10 टॉपिक कवर किए हुए, हरेक टॉपिक चो एक क्वेश्चन है और ये भी कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू डू दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स। नाउ कंपोजिशन पार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्ट विच असी पढ़िया सी मैसेज, एडवरटाइजमेंट, नोट मेकिंग या नोटिस। हुण इहदे च देखो तुसी सब तो पहला उपर की आया होया वा नोटिस ए पार्ट विच, ते उहदे नाल ऑप्शन की आई हुई है रीड द टैलीफोनिक कॉन्वरसेशन एंड लीव द मैसेज। मैसेज राइटिंग है, दोनों विचों तुसी एक करना है, तो यह है 3 नंबर का। जे नोटिस करोगे 3 नंबर का है, मैसेज करोगे 3 नंबर का। ये ना सोचिए दोनों करते तो 6 नंबर मिल जाएंगे, नो, यू विल गेट 3 मार्क्स ओनली। नैक्सट इज़ पैराग्राफ बी पार्ट। 2 पैराग्राफ आए हुए तुसी देख सकते हो, ठीक है। उन्हां चों तुसी एक करना है। ये तुहाडे हिंट्स नाल ही आंदे क्योंकि तुहाडी बुक विच भी हिंट्स दिते हुए है। लास्ट इज़ सी पार्ट ऑफ दिस सेक्शन लैटर राइटिंग, पर्सनल, ऑफिशियल एंड बिजनेस। हुण तुसी पहली लैटर देख सकते हो, पर्सनल है, राइट अ लैटर टू योर फादर, राइट, दिस इज़ अ पर्सनल लैटर। तो उस तो बाद वाली केड़ी है ऑफिशियल या बिजनेस, राइट अ लैटर टू अ बुक सेलर, ठीक है। तो इन्हां विचों एक करनी है, 6 मार्क्स दी है। क्लीयर। एंड लास्ट इज़ मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, 5 नंबर है। सारा पेपर तुसी साफ सुथरा ते सोहना करोगे, 5 नंबर मिलणगे। पर सोहना करन दे चक्कर च पेपर ना छड्ड दियो, स्पीड रखियो, 3 घंटे का ही टाइम है। क्लीयर। सो दिस इज़ योर मॉडल टेस्ट पेपर। नाउ get ready for your exams, prepare for your exams and give your best. All the best, wishing you good luck for that. Thank you. Have a nice day.